شادیوں کو ہم آسان کیسے بنا سکتے ہیں، بیجا اخراجات اور نمود و نمائش کو کیسے روکا جائے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور اسی حوالے سے دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ دو خصوصی مہمان ہیں اسٹوڈیوز میں، سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب اور لائف کوچ ڈاکٹر سیدہ تسمیرہ صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ویڈیو لنک پر۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان بوتھ آف یو۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا کہ آج کل تو ایک نفسان نفسی کا عالم ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، تو نکاح اور شادی کو کیسے آسان بنایا جائے؟ اس کا جواب جو ہے میں دو جواب دوں گی۔ ایک تو بالکل ٹیکسٹ بک آنسر ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کمیونیکیشن کو اوپن کیجئے، دونوں فیملیز کے مابین یہ کمیونیکیشن ہوگی، جن لوگوں کی شادی ہو رہی ہے ان کے درمیان یہ کمیونیکیشن ہوگی۔ مینجمنٹ جتنے خرچوں کو بڑھانے میں لگتی ہے وہی مینجمنٹ ڈیسائیڈ ہوگی کہ خرچے کو کم کرنے یا سادگی سے شادی کرنے پہ کیسے مینیج کیا جائے گا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ ایک ریلیجس طور پہ ایک انسٹیٹیوشن کو جو ہے بڑھانے کا طریقہ ہے، تو اس کو ریلیجس ہی رکھتے ہیں، اس میں جو ہمیں تقاضے بتائے گئے ہیں صرف سمپلی اسے فالو کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک سائیکالوجسٹ ہونے کی وجہ سے ایک ایزیلی ورکبل سلوشن بتائیے، کیونکہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فیملی یہ خرچے بڑھا دے تو اس وقت ہمیں سوشلی اس فیملی کو یہ دکھانا ہے کہ انہوں نے کتنا برا کیا، یعنی کہ ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی کتنے کوئی بلو ایوریج پروان چڑھے ہوئے بچے ہیں جن کی پیکیجنگ پہ بہت کام کرنا پڑا ہے پیرنٹس کو، تاکہ وہ جو ہے ان کی شادی کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی آپ نے بات میننگ چینج، بالکل دیکھیے جو میننگ ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ میں بہت معیوب سی بات کہوں گی لیکن سب کو سمجھ آ جائے گی آسانی سے۔ ہر چیز کا میننگ ہوتا ہے، چند ایسی معیوب گالیاں بھی ہوتی ہیں جو اشارتاً دی جاتی ہیں، ہاتھ کے کسی اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، وہ تو ہاتھ کا ایک عمل ہوتا ہے یا آنکھ کا عمل ہوتا ہے، اس میں معنی جو ہے وہ معیوب ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے جی یہ معیوب بات ہو گئی کیونکہ مطلب ایسا چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم شادی میں خرچے بڑھانے کو جو ہے نا اس میں میننگ معیوب اٹیچ کر دیں کہ او مائی گاڈ اتنا برا کام اور اتنے گئے گزرے بچے، تو پھر سب جو ہے نا فوراً اس پہ جو ہے عمل درآمد کریں گے کہ سادگی سے شادی کیسے ہو، تاکہ لوگوں سے یہ نہ کہیں بڑا افسوس ہوا کہ آپ نے بڑا خرچہ کیا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی خوبصورتی سے یہ ایکسپلین کیا کہ آپ جو ہے نا پیکیجنگ پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں دین اسلام ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں، شادی جو ہے وہ آسان ہو اور اتنا نمود و نمائش نہ اس میں ہو، خرچہ کم ہو؟ تسلیم، سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بھی بڑا ان معنوں میں دلچسپ ہے کہ اس ایک رشتے کی نسبت اور تعلق سے اگر غور کریں تو سارے معاشرے کی بنیادی اساس ہی یہ ہے۔ اور دین اسلام کے بارے میں تو جب ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو مسلمانوں کا اپنا اس کے بارے میں ایک رائے قائم کرنا تو ایک طرف، غیر مسلم جو اسکالرز ہیں اور دانشور ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ دین رحمت نے گھرانے کے نظام کو اتنی اہمیت دی ہے، خاندان کو اتنی تعظیم اور توقیر دی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ دین آیا ہی گھرانے کے نظام کو تقویت دینے کے لیے ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ گھرانے کی بنیاد اور اساس جو ایک رشتہ ہو سکتا ہے وہ نکاح کا رشتہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کے اندر ہمیں عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی نکاح کی پذیرائی بہت ملتی ہے، اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملتی ہے، اور یوں نظر آتا ہے کہ جیسے معاشرے کے اندر اس نکاح کے ڈسپلن کو اور اس فارمیٹ کو ایک بہت زیادہ انداز میں آسانی فراہم کرنے کا ایک جذبہ ہمیں اس کے اندر نظر آتا ہے۔ ہر انداز سے نکاح جو ہے اس کو آسان کیا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جتنی بھی سماجی علتیں پائی جاتی ہیں، معاشرے کی سطح پر کردار کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے جتنی بھی الجھنیں اور پریشانیاں اس کا انسانوں کو سامنا ہے، اس کی بنیاد ہی نکاح کے رشتے کو مشکل بنانا ہے۔ یعنی جتنا اس کو آسان بنایا جائے گا اتنا غیر اخلاقی جو سرگرمیاں ہیں ان کے لیے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور نہ صرف یہ کہ اس سے ایک معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک پاکیزگی کی فضا پیدا ہونا شروع ہوگی، بلکہ ایک جو جسے کہتے ہیں نا کہ دائمی سکون جو ہے اس کی طرف انسان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ بالکل، نہ صرف فیملیز بلکہ جو معاشرتی بہتری ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گی، پورا معاشرہ جو ہے اس کا ڈھانچہ بہتر ہوگا مزید۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل شادی کی جو تاریخ رکھی جاتی ہے
उससे 15-15 दिन पहले तकरीबात शुरू हो जाती हैं, कई 7-7 दिन मेहंदियां चलती हैं और उसके ब्राइडल शावर चलते हैं, डिशें, महंगे कपड़े, और फिर हम देखते हैं कि गैर ज़रूरी जहेज़ है जिसकी भरमार होती है, शैंडी शलीमा, ये कॉन्सेप्ट और भी है। यहाँ तक बात उज़ैर ख़त्म नहीं होती, शादी के बाद भी ये जो तकरीबात है ना चलती रहती हैं। तो ये सब लाजमी क्यों है? देखिए, पहली बात है ये लाजमी नहीं है। आप निकाह की बात हो करें, चुका हुआ है निकाह ना, में मतलब तो माशरे में लाजमी हो गया हुआ है आजकल। जी जी, अच्छा, ये ना किसी चीज़ को क्या चीज़ लाजमी ठहराती है ना, सोशली हम कंफर्म कर जाते हैं किसी भी चीज़ पे, चाहे खा वो सही हो या गलत हो, लेकिन हमें ये बताना है कि जिस चीज़ की हवा चल पड़ी है लाजिम नहीं है कि वो ठीक हो। हवा चल पड़ी है, एक रुख जा रहा है माशरा, तो कोई पहला होगा, कोई दूसरा होगा जो कि कहेगा कि ये लाजमी नहीं है, और वो इस पे अमल पैरा होगा, तो जो है इसकी ये वाली पोजीशन कि ये लाजमी है, ये चेंज हो जाएगी। यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत मेहनत लगी है, यहाँ से उतरने में भी बहुत मेहनत लगेगी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है कि अब निकाह में हमें ये पता होता है कि ये जो लड़ियों का पर्दा है, फूलों की लड़ियों का पर्दा, तो ये निकाह सेरेमनी है, ये ख़ास कलर का ड्रेस है, इसका मतलब है कि ये निकाह सेरेमनी है। तो हमें ये सारा कुछ जब प्रैक्टिस से ही चेंज करना होगा, ना करके अनलर्न करना होगा ये बिहेवियर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, मुझे बताइएगा इस्लाम में जहेज़ और हक महर के हवाले से क्या अहकामात है? जैसे मैंने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में अर्ज़ किया कि दीन रहमत जो है वो इस डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा आसान बनाने के लिए हौसला अफजाई करता हुआ नज़र आता है। अभी आप तज़किरा कर रहे थे मुख्तलिफ़ रसूम व रिवाज के नाम पर ये जो हमने इल्लतें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ली हैं, और मुआशरे के अंदर कोई शख्स जब निकाह के लिए तसव्वुर कायम करता है, कोई घराना ये सोचता है कि इस घर के अंदर किसी बालिग की शादी की जाए, तो एक ना ख़त्म होने वाले चैलेंजेस की एक फ़हरिस्त उसके सामने आना शुरू हो जाती है, और उसको फेस करना और उसको डील करना, उसके लिए अखराजात का तयन करना और अखराजात का तयन करना, ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक मरहला जो है वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर आ जाता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के अंदर मौजूद हैं, और असहाब, आप तसव्वुर कीजिए कि आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मैसर हो या हुजूर की सोबत मैसर हो, तो कोई इस उम्मत का फ़र्द जो है अपने आप को कितना खुश नसीब तसव्वुर करेगा। निकाह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी कितनी बरकत का बायस हो सकती थी, लेकिन हमने देखा ज़माना अमन के आलम में भी ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात और अहवाल हमें सीरत में मिलते हैं कि जब हुजूर मदीने के अंदर मौजूद हैं और उस वो 6 मील और 6 मील से 12 मील के दरमियान के फासले की जो एक आबादी है, उसी में ही असहाबे रसूल भी मौजूद हैं और हुजूर भी मौजूद हैं, और एक सहाबी ने निकाह करने के बाद हुजूर की मजलिस को इख्तियार किया, और दूसरे असहाब ने जिन्हें उनके निकाह का इल्म था, उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये इशारतन अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, फ़लाँ शख्स ने जो है निकाह करने के बाद आपकी मजलिस को इख्तियार किया, यानी आपके पास आ गया। तो हुजूर ने बजाय इसके कि उस पर यानी नाराज़गी का इज़हार करते, हुजूर ने खुशी का इज़हार किया और कहा कि इसने एक मुबारक काम किया और इसको आसान बनाया। यानी इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हुजूर की मौजूदगी के बावजूद कि उन्होंने हुजूर को भी उसमें उस तरह इन्वाइट नहीं किया, निकाह किया और उसके बाद हुजूर को आके खबर दी और हुजूर ने उसकी हौसला अफजाई फरमाई। इससे हमें ये पता चलता है कि मुआशरे के अंदर निकाह, ये जो हमारे यहाँ एक बड़ा चैलेंज आ जाता है ना, कि वो सारे लोग जिनको ज़िंदगी में हम एक दफ़ा ख़ानदान के नाम पर मिले होते हैं, खूनी रिश्तों के नाम पर मिले होते हैं, दोस्त अहबाब, जानने वाले, वर्क प्लेस पे जो आपके साथ काम करने, यानी दीन इस्लाम में कहीं भी इसके हवाले से कोई हमें पजीराई मिलती नहीं है कि आप अपने सारे खूनी रिश्तेदारों को निकाह के अंदर शामिल करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है तारिक साहब, आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की और वाकई की रोशनी में ये बताया। डॉक्टर तस्वीरा साहिबा, आप ये बताइए, जिस तरह पहले बात हो रही थी कि ये जो लाजमी है ना, अब इसको चेंज करने का जो है ना वो वक्त आ गया है, तो ये बताएं कि क्या नफ्सियात ऐसी हैं जो कार फरमा होती हैं जिनको तब्दील किया जा सकता है, जिससे ये रस्म रिवाज जो हैं इनका ज़रा खात्मा हो जाए और आसान और सादा तरीके से निकाह को अंजाम दिया जा और सके। उज़ैर, आपकी बात के अंदर से थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी, ये यंगस्टर्स के हवाले से भी बताएगा, जिस तरह आपने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया ना, कि हम उनको कैसे कायल कर सकें कि वो सिर्फ निकाह और वलीमे की तरफ आएँ। अच्छा, हमें पहले हम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर देते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, और उसी में हमें आंसर मिल जाएगा। कौन से वो मुहर्रिकात थे, कौन से वो
रीज़न्स थे जिनकी वजह से ये यहाँ तक पहुँची, यानी कि सोशल इन्फ्लुएंसेस ये कहाँ से आए, बरादरी से आए, सोसाइटी से आए, फील गुड इफ़ेक्ट से आए, पैसे की बहुतात से आए, कि किस चीज़ से आए। वही चीज़ें जो हैं हम इस दूसरी तरफ इस्तेमाल कर लेंगे सादगी से निकाह करने की वजह से। अगर सोशल प्रेशर की वजह से ये आया है तो अब हम एक सोशल प्रेशर क्रिएट करेंगे कि सादगी से निकाह कीजिए। अगर किसी लीगल प्रेशर से आया है तो हम लीगली करेंगे। अगर ये हमने कहा है वालिदैन की ख्वाहिश थी, मेरे दिल में तो बहुत अरमान है, मेरे बेटे की एक ही बेटा है उसकी ऐसी, तो अब वालिदैन को हम ट्रेन करेंगे कि अब आप बताएंगे मेरे दिल में बहुत अरमान है कि मेरे बेटे की वो एग्जेम्पलरी शादी हो, कि जिसमें बहुत सादगी से वो निकाह होगा और रुखसती होगी। और उसी तरह से बेटी के माँ बाप भी कि अगर वो किसी बोझ के तहत ये कर रहे थे तो अब आप उन पे ये बोझ डाल दीजिए कि आपने ये नहीं करना। जिस सीढ़ी पे चढ़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसी सीढ़ी को इस्तेमाल करें कि हम वहाँ तक पहुँचें। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा, ये नजर ट्रेंड काफ़ी हद तक चेंज भी हो रहा है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो भी शादी करते हैं तो यतीम खानों में डॉक्टर साहब खाना रख लेते हैं यतीम बच्चों के साथ, वो वहाँ पे अपना वलीमा करते हैं। बड़ी अच्छी रिवायत है। ये बताइए हमारी जो इस्लामी इक़दार हैं, रिवायात हैं, और अगर हम देखें हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी जो शादी है वो एक मिसाल है हमारे सामने। किस तरह से नौजवानों का हम इस तरफ राग़िब कर सकते हैं? देखें, सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसे अल्लाह ने उसवा कामिल करार दिया, और ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर हुजूर की ज़िंदगी से बड़ी नुमायाँ और बिल्कुल वजाहत पर मबनी जो है वो रहनुमाई और रोशनी हम तक पहुँचती है। ख़ुद सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर मुतअद्दिद निकाह नज़र आते हैं, और हुजूर की शख्सियत से जो हम तक पैगाम पहुँचा उसमें निकाह का जो मामला है इसके अंदर ईजाब व कबूल है, एक मुख्तसर सी मजलिस का बर्पा किया जाना है, उसके बाद हक महर है, और फिर वलीमा है, रुखसती और वलीमा है। इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं वो आप इसके अंदर इजाफी कर रहे हैं। और हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि दीन रहमत जो है उसका मकसूद ही ये है कि इस चीज़ को आसान बनाया जाए और इसे मुख्तसर रखा जाए। इसके अंदर मुख्तसर रखना भी इसके एहतमाम का हिस्सा है। आप खुद देखें कि कायनात की सबसे अजीमुल मर्तबत बेटी, हम सबको ये ख्वाहिश होती है ना कि हमारी बेटियों की जो शादी है वो बड़ी धूमधाम से हो, बड़ी यादगार हो। तो तसव्वुर कीजिए कायनात की सबसे अजीमुल मर्तबत बेटी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो ज़िंदगी है उसके अंदर जब निकाह का मरहला आता है तो हम देखते हैं कि कितनी सादगी के साथ बड़े अच्छे तरीके से आपने ये बताया। और ये जो मिसाल आपने दे दी है ना, अगर हमारे नौजवान इसको स्टडी कर लें, माँ बाप खास तौर पर इसको स्टडी कर लेना तो जिंदगी आसान हो जाएंगी और निकाह भी आसान हो जाएंगे। इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करें।